Hello students, let us continue with the topic that we started in the last lecture, supply of money or money supply. Children, we discussed what is the definitions for money, what are the functions of money. Then we also saw what is the meaning of money supply. It is a total stock of money or total stock of domestic means of payment held by the public in spendable form. फिर दो अलग-अलग money supply के constituents से children, we have the traditional money and we also have the modern money. The traditional money, children, which is called as the narrow money, and the modern money, children, which is also called as the broad money. And then I just ended with children, money supply में क्या क्या include किया जाता है और फिर money supply में क्या क्या include नहीं करते हम लोग. Now today's answer, children, for discussion, as you can see on your screen, it's the determinants of money supply. मतलब चलो money supply कौन कौन से factors के ऊपर depend करता है. So children, based on the different constituents of money supply, I think the money supply will be determined by various factors. Acha. Now there are two different views that we have regarding the determinants of money supply, children. The first view, iska pehla jo view aata hai, which says that money supply is determined endogenously by changes in the economic activity of money. जबकि जो सेकेंड व्यू आता है चिल्ड्रन इसका, विच सेज दैट मनी सप्लाई एज एन एक्सोजेनस वेरिएबल विच इज डिटरमाइंड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी एक्शन. तो कभी कभी बोला था चलो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से मनी सप्लाई डिटरमाइंड होता है, कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि जो मॉनेटरी अथॉरिटीज होते हैं यानी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट वी हैव चिल्ड्रन, अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो हैव द गवर्नमेंट व्हिच एक्चुअली टेक सम पॉलिसी एक्शन, तो उसके बेस पे मनी सप्लाई डिटरमाइन किया जाता है. तो हम लोग क्या बोले बच्चों, तो वी से दैट मनी सप्लाई डिपेंड्स अपॉन सम एक्सोजेनस एज वेल एज एंडोजेनस फैक्टर्स. So let us discuss them. The first determinant of money supply, children, it's called as the high powered money. क्या रिफर करेंगे इसको हम लोग, high powered money, which is also called, children, as the reserve money. तो high powered money अगर आप बोलते हो तो फिर it will be considered as H, या फिर अगर आप रिजर्व मनी करके बोलते हो तो फिर उसको M0 करके बोला जाता है. Now these are the names which are actually attributed by Reserve Bank of India. So children, this is considered as the base of money supply. फिर that is the reason why we refer to it as base money. अब आप बोले सर हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले आता है C. तो C का मतलब होता है चलो कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स, और I would actually call them as currency with the public. R का मतलब होता है चलो बैंक के पास जितने रिजर्व्स है वो, और OD का मतलब होता है चलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो अदर डिपॉजिट्स आते हैं वो. तो अकॉर्डिंगली वी फॉर्म अ फॉर्मूला चिल्ड्रन, वी से दैट H equals to C plus R plus OD. तो C children here stands for currency, R for reserves, OD का मतलब होता है other deposits. So high powered money is very different from M1, जिसमें सेकेंड वाला जो कंपोनेंट आता है ना चिल्ड्रन, दैट इज R, रिजर्व्स इंक्लूड होते हैं. अगर चिल्ड्रन इफ यू रिमेंबर दैट इज फॉर्मूला M1 is equal to C plus DD. That is the formula that I told you in the last lecture. इसका मतलब है चलो करेंसी दैट इज नोट्स एंड कॉइन्स along with डिमांड डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज M1. लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेंटर में हमने और कौन सा वर्ड इंक्लूड किया चिल्ड्रन, R. तो ये R differs high powered money from M1. So M1 children is equal to C plus DD plus OD, and H is equal to C plus R plus OD. So this is the difference that we have, children. Acha. So M1 children, it's a part of the total money supply that we have. तो वहां पे बच्चों लोग अगर आप देखोगे तो DD वहां पे है लेकिन यहाँ पे DD नहीं है. तो R और DD, that's the differences that we children have here. तो एक में डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं और दूसरे में चिल्ड्रन वी जनरली टॉक अबाउट दी रिजर्व्स दैट आर विद द बैंक्स. ओके, अच्छा. तो फाइनली चिल्ड्रन व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी कंक्लूड हियर, दैट हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू करेंसी प्लस रिजर्व्स प्लस अदर डिपॉजिट्स. अच्छा, तो जितना रिजर्व मनी ज्यादा होगा चलो तो ऑटोमेटिकली, जितना हाई पावर्ड मनी ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई उतना ही ज्यादा होगा. If high powered money is less, then money supply will be less because it's a base money, children, जहां से पैसा फ्लो होता है बाहर इकोनॉमी में. So high powered money, children, is a very important determinant of money supply. दूसरा जो determinant दिया है यहाँ पे चिल्ड्रन, as you can see on your screen here,
इट्स नथिंग चिल्ड्रन बट द मनी मल्टीप्लायर। क्या है? मनी मल्टीप्लायर। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? इनिशियली मॉनेटरी अथॉरिटी जितना पैसा सप्लाई करते हैं, मतलब गवर्नमेंट और आरबीआई जो पैसा सप्लाई करते हैं और अल्टीमेटली इकोनॉमी में जाते हैं, वो पैसा कितना बन जाता है, ये सब हाई पावर्ड मनी के ऊपर डिपेंड करता है चिल्ड्रन। सो वी हैव द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई एट अ गिवन टाइम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अच्छा, अभी मनी मल्टीप्लायर दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है चिल्ड्रन, एक होता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो और वन वी हैव चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज द रिजर्व रेशियो। तो चलो, मार्केट में कितना पैसा जाके मल्टीप्लाई होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक होता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। अच्छा, करेंसी डिपॉजिट रेशियो होता क्या है चलो? तो हाई पावर्ड मनी इज डिमांडेड बाय द पीपल एज करेंसी, तो लोगों को करेंसी चाहिए रहता है, और बैंक्स को क्या चाहिए रहता है? लेकिन रिजर्व्स। अच्छा, पीपल प्रीफर करेंसी, इफ पीपल प्रीफर मोर करेंसी देन ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगा? लेस होगा। It's so natural children that if more cash is demanded by the people then less will be available with the banks। but चलो, अगर हम लोग सब पैसा अपने पास रखना चालू कर दिए तो बैंक के पास ऑटोमेटिकली पैसा कम हो जाएगा and the banks will not be able to create proper credit, so there will be low credit creation। तो लोग क्या प्रीफर करते हैं? लोग दो चीजें प्रीफर कर सकते हैं, एक होता है करेंसी, या तो मैं अपने पास रोकड़ा रख सकता हूँ बच्चे लोग, या फिर वो पैसा मैं करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट में डाल सकता हूं। अगर मैंने अपने पास रोकड़ा रखना चाहा तो फिर बैंक के पास पैसा कम होता है, अगर मैंने अपने पास ज्यादा पैसा नहीं रखा तो फिर ऑटोमेटिकली बैंक के पास ज्यादा पैसा चला जाएगा। और ये सब चीजें बच्चों लोगों के बैंकिंग हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करेगी, लोगों के इनकम लेवल के ऊपर और मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बैंक्स अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे तो फिर मैं अपने पास रोकड़ा क्यों रखूंगा? आई विल पुट ऑल दैट मनी इन द bank. If I got more income children, I'll deposit more money in the bank. If I got less income, I might not deposit money in the bank. And it also depends children to a large extent on the banking habits of the people. Do the people have the habit to go into the banks and deposit money, or people like to save or keep stock money with themselves with idle cash balances? इसको बोलते हैं बच्चों लोग करेंसी डिपॉजिट, मतलब लोग अपने पास करेंसी रखना चाहते हैं या फिर करेंसी को बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं। इसके ऊपर मार्केट का मनी सप्लाई डिपेंड करेगा। And then children we also have the reserve ratio। रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? कि जो हम लोग पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स, जो बैंक को अवेलेबल होते हैं बच्चों लोग क्या करने के लिए? दूसरे लोगों को लोन्स देने के लिए इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अगर मैंने पहली बार बच्चों लोग उसको डिपॉजिट किया प्राइमरी डिपॉजिट, अच्छा उसमें से बैंक ने किसी को चेक दिया, वो चेक किसी और बैंक में गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। The total quantity of money received by the bank is the reserve money, and the reserves are basically divided into two types। एक होता है बच्चों लोग required reserve और एक होता है excess reserve। चलो एक required reserve। Required reserve का मतलब होता है बच्चों लोग they are the reserves with commercial banks that are statutorily required to be held with the central bank। Okay? इसको रिक्वायर्ड रिजर्व बोलते हैं। आपको पता रहेगा बच्चों लोग, एवरी बैंक दैट यू कम अक्रॉस, मतलब किसी भी बैंक के बारे में बात करोगे, आई होप यू पीपल आर अवेयर अबाउट दिस, हर एक बैंक के पास बच्चों लोग जितना भी पैसा आता है उसमें से कुछ पैसा बैंक क्या करेगी? लेंडिंग करेगी, और कुछ पैसा उनको अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है। ये रिजर्व्स दो टाइप के होते हैं बच्चों लोग, एक होता है रिक्वायर्ड रिजर्व, अच्छा रिक्वायर्ड रिजर्व, और एक होता है बच्चों एक्सेस रिजर्व। अभी रिक्वायर्ड रिजर्व के अंदर भी बच्चों दो टाइप से, वो रिजर्व बच्चों जो हर एक बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ता है, और वो पैसा बच्चों जो हर एक बैंक को किसको देना पड़ता है? गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक को जो पैसा देते हैं, आई होप यू नो दैट इट्स टर्म्ड एज CRR, कैश रिजर्व रेशियो। जो गवर्नमेंट को पैसा दिया जाता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी liquidity ratios children that we have। okay, now the required reserve मतलब अगर बैंक को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ा तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन मार्केट में जाने वाला पैसा क्या हो जाएगा? कम होगा। अगर बैंक को आरबीआई के पास कम रिजर्व्स रखने पड़े तो फिर बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में ज्यादा पैसा जाता है।
सो अल्टीमेटली चिल्ड्रन बैंक्स कितने लोन्स फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितना पैसा लेंड कर सकते हैं, उनके पास लिक्विडिटी कितना होता है, ये रिजर्व्स के ऊपर डिपेंड करता है. इफ आरबीआई टेक्स more reserves, bank will have less money. If RBI takes less reserves, then banks will have more money, more less. That's the concept that we have. अच्छा, अभी एक बैंक के पास जितना पैसा आया उसमें से उन्होंने कुछ पैसा आरबीआई को दिया, कुछ पैसा गवर्नमेंट को दिया, कुछ पैसा उन्होंने लोन करके दिया, लेकिन पूरा का पूरा पैसा लोग गायब नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर कभी भी पैसा विड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं. So there is a kind of concept that we have children which is referred to as करेंसी ड्रेन करके रिफर किया जाता है उसको. इट्स अ नेट विथड्रॉवल ऑफ कैश बाय डिपॉजिट. नाउ व्हाई डू दे कॉल दिस अ नेट विथड्रॉवल? बच्चों लोग, बैंक ने अपने पास 10 करोड़ रखे थे, फिर क्या होता है, आज 5 करोड़ विड्रॉ हो गए तो 5 करोड़ बचे, लेकिन 2 करोड़ डिपॉजिट भी हुए बच्चों लोग, तो नेट विथड्रॉवल कितना होता है बच्चों लोग? इट्स 3 करोड़. हाँ, so the required to cross clearing of checks and among the banks, and the demand for cash for RR, that is required reserve and excess reserve, determines the reserve deposit ratio, which is the R which finally determines the volume of credit that is given by the commercial banks. तो देखो, अगर बैंक ने अपने पास ज्यादा पैसा रख दिया बच्चों लोग एक्सेस रिजर्व करके, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी एबल टू गिव मोर मनी टू द आउटसाइड पीपल. तो ये होता है बच्चों लोग करेंसी डिपॉजिट रेशियो. देयर आर सम अदर फैक्टर्स एज वेल चिल्ड्रन दैट वी कैन डिस्कस हियर. तो अदर फैक्टर्स में एक तो अभी हमने किसकी बात की थी, हाई पावर्ड मनी. दूसरा क्या था बच्चों लोग, मनी मल्टीप्लायर. अच्छा, दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स चिल्ड्रन. सो दे गिव राइज टू द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एंड द डिसीजंस टेकन बाय द पब्लिक. पब्लिक आते हैं बच्चों, इसमें गवर्नमेंट आता है, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, then we also have the commercial banks. कौन कौन आते हैं बच्चों इसमें? The first one which is actually being referred to here as the community choice. Community choice का meaning क्या होता है children? कि like community क्या prefer करता है? क्या वो लोग अपने पास रोकड़ा रखना चाहते हैं, फिर बैंक में पैसा रखना चाहते हैं? So they might hold currency in relation to deposits in commercial banks. If the community prefers payment by checks than cash, लोग प्रीफर करेंगे अगर चेक का पेमेंट, देन मनी सप्लाई विल बी मोर बिकॉज बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट विद द गिवन डिपॉजिट्स. अच्छा, लेकिन वहीं पे बच्चों अगर लोग चेक की जगह पे ज्यादा कैश में डील करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा, बिकॉज मनी विल नॉट गेट डिपॉजिटेड इन द बैंक्स एंड बैंक्स विल नॉट बी एबल टू क्रिएट क्रेडिट. सो लोगों का बच्चों बैंकिंग का जो हैबिट होता है वो करेंसी डिपॉजिट रेशियो को अफेक्ट करेगा. सो आई थिंक बैंकिंग सर्विसेज, द प्राइस लेवल, लोगों का इनकम लेवल, ये सब चीजें आते हैं. तो लोग अगर चेक के जरिए डील करेंगे तो मनी सप्लाई विल बी मोर. तो आप इसको बच्चों लोग एकदम सिंपल वर्ड्स में भी याद रख सकते हो. एज वी सेड कि लाइक हम लोग किसकी बात कर रहे थे बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी चॉइस. सो ईदर पीपल वांट टू डील विथ चेक्स, राइट, या फिर उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है चिल्ड्रन, दे माइट ऑल्सो बी डीलिंग विथ कैश. इफ मोर पीपल डील विथ चेक्स देन मनी सप्लाई विल बी मोर, बट इफ मोर पीपल डील विथ कैश देन ऑटोमेटिकली योर मनी सप्लाई इज गोइंग टू बी लेस. फिर आता है चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन. वेलोसिटी वर्ड का मीनिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था चिल्ड्रन. इट रिफर्स टू द स्पीड विथ विच मनी चेंजेस हैंड्स, वी कैन से. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चिल्ड्रन मनी सप्लाई कितना होता है, ये उसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. मतलब चिल्ड्रन इट्स, वी कैन से लाइक दिस दैट वेलोसिटी अगर हाई रहेगा तो मनी सप्लाई विल बी मोर, बट चिल्ड्रन इफ वेलोसिटी इज लेस देन मनी सप्लाई विल ऑल्सो बी लेस. अच्छा, जैसे कि बच्चों 1000 रुपए का नोट है, 2 बार इधर उधर अगर वो करता है तो 2000 का मनी सप्लाई होता है, लेकिन वहीं पे 2000 का नोट है और वो 4 बार एक के हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है तो बच्चों मनी सप्लाई फिर 8000 रुपए का हो जाता है. सो दैट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय योर सेविंग्स, द प्राइस लेवल एंड द पेमेंट हैबिट्स. देन वी आल्सो हैव चिल्ड्रन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी बच्चों डिपेंड करेगा कि लाइक मार्केट में मनी सप्लाई कितना होता है. So people's preference for liquidity also depends upon the rate of interest. अच्छा,
इफ द बैंक्स आर गिविंग यू हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बैंक्स आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है, सो लेस मनी विल बी हेल्ड इन कैश एंड वाइस वर्सा। बट चलो मेरे पास अगर 10 लाख रुपए रहेगा, बैंक ने बोला कि हम लोग 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, फिर मैं 10 लाख रुपए अपने पास रखू या फिर बैंक में रखू। बट चलो अगर मैंने बैंक में रख दिया 9% के हिसाब से मुझे 90,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का। तो आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, इसलिए मैंने अपना पैसा बैंक में रख दिया। लेकिन वहीं पे उस दिन मैं चेक करा था एफडी के ऊपर लोग 3.5% इंटरेस्ट पे करे 6 मंथ्स के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, चलो 1750 रुपए मिलेगा आपको 6 महीने का इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर। सो व्हाट डू यू फील, शुड आई डिपॉजिट द मनी इन द बैंक और शुड आई होल्ड द मनी विथ मी? इट्स बेटर दैट यू होल्ड द मनी विथ योरसेल्फ चिल्ड्रन. So that is what is called as the rate of interest. Then children, we also have the monetary policy and the fiscal policies. Now let me tell you a little in detail children कि monetary policy और fiscal policies क्या होते हैं। तो चलो मार्केट में इकोनॉमीज को स्टेबिलाईज करने के लिए, मनी सप्लाई मैनेज करने के लिए हमारे पास 2 अलग अलग अथॉरिटीज है। एक होता है चिल्ड्रन मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज हैंडल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी इन आवर कंट्री, just like any other country. And then children, on another side we also have the government which does the work of handling the money supply. तो बच्चों आरबीआई जो अनाउंस करती है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, यहाँ पे वी रिफर टू इट एज द मॉनेटरी पॉलिसी। और जो पॉलिसी गवर्नमेंट फ्रेम करते चिल्ड्रन इट इज कॉल्ड एज द फिस्कल पॉलिसी। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी चिल्ड्रन that is actually framed by the central bank, it will play a very vital role in credit creation and therefore the money supply. अच्छा बच्चों आरबीआई के पास बहुत सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं जो मैं आपको इन्फ्लेशन टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जो आपने 12th में भी पढ़े थे, जो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आरबीआई ने चीप मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई किया तो मनी सप्लाई विल बी मोर। चीप मतलब पैसे को सस्ता किया तो ऑटोमेटिकली ज्यादा लोग पैसा लेंगे, दैट मीन्स मनी सप्लाई विल इंक्रीज। एंड इफ दे अडॉप्ट अ डियर मॉनेटरी पॉलिसी, डियर मतलब पैसा महंगा हो गया, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई विल रिड्यूस इन द मार्केट। हाउ डू वी सम अप दैट चिल्ड्रन? सो as we said ki children, the monetary policy framed by whom? The Reserve Bank of India. Acha, they can frame 2 different types of policies. Number 1 children, what is called as the cheap monetary policy. cheap मतलब चलो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं, या फिर जब रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाता है चलो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डियर मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मतलब चलो पैसा सस्ता हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली मोर पीपल आर गोइंग टू टेक लोन्स एंड देन मनी सप्लाई विल इंक्रीज। लेकिन अगर आरबीआई ने बच्चों लोग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा के रख दिया है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मोर पीपल विल नॉट बी एबल टू टेक लोन्स एंड हेंस द मनी सप्लाई इज गोइंग टू बी लेस इन द मार्केट, राइट? अच्छा, सिमिलरली चिल्ड्रन, there is one more policy that is actually brought out by the government which is actually referred to as the fiscal policy. Fiscal policy children are basically related to the government as I said. So बच्चों लोग money supply can also be influenced by the government. जैसे कि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट का जो बजट होता है, बजट के 2 साइड्स होते हैं ना चिल्ड्रन। ऑन वन साइड गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है और दूसरे साइड में होता है बच्चों लोग गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है? रेवेन्यू कहां से मिलता है, तो रेवेन्यूज आर बेसिकली कलेक्टेड थ्रू टैक्सिंग द पीपल एंड द कॉर्पोरेट्स। और एक्सपेंडिचर बच्चों लोग बहुत सारा सोशल एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर करके बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, गवर्नमेंट ने अगर टैक्सेस को बढ़ा दिया, क्या, इफ द गवर्नमेंट रेजेस टैक्सेस, और सपोज फॉर एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक के ऊपर खर्चा जो होता है उसको कम कर दिया, तो इसको चलो हम लोग क्या बोलते हैं पता है, दिस इज समथिंग व्हाट इज रिफर्ड टू एज टाइट फिस्कल पॉलिसी और इट्स अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, मतलब क्या होता है देखो, दिस इज समथिंग चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज डेफिसिट फाइनेंस करके एक वर्ड आएगा। डेफिसिट फाइनेंस क्या होता है, टैक्स को रिड्यूस करने का चिल्ड्रन, और लोगों के पास जो खर्चा करने के लायक जो इनकम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, उसको आप कम करोगे। Taxation reduces money supply because disposable income of the people gets reduced due to taxes. मतलब टैक्स को बढ़ा के हमने लोगों का खर्चा कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली मार्केट में पैसा क्या होता है, कम होता है।
लेकिन वहीं पे अगर गवर्नमेंट ने बच्चों टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया या फिर कुछ टैक्सेस को टोटली हटा दिया है गवर्नमेंट ने, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अच्छा, तो आई वुड एक्चुअली कंक्लूड इट लाइक दिस चिल्ड्रन कि ये जो फिस्कल पॉलिसी आता है, ओके, ये दो टाइप्स में आएगा। अच्छा, नंबर वन वी गॉट अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और एक होता है बच्चों एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी में गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्सेस को बढ़ावा देने का, प्लस गवर्नमेंट अपना जो खर्चा होता है ना एक्सपेंडिचर, उसको क्या करेगा, कम कर दो, ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वहीं पे चिल्ड्रन इफ दे आर फॉलोइंग एक्सपांशनरी पॉलिसी देन व्हाट दे विल बी डूइंग, टेल मी, then the government is going to reduce the taxes and plus along with that government लोगों के ऊपर जो बच्चों पैसा खर्च करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर उसको बढ़ाया जाता है। सो एक्सपांशन की वजह से बच्चों फिर मार्केट में ज्यादा मनी सप्लाई जाए। Now did you notice just one thing children, that in this answer when we were discussing about the determinants of money supply, we are just trying to discuss like कौन सी situations में मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होता है और कौन सी situations में बच्चों मनी सप्लाई मार्केट में कम रहेगा। And ultimately children that tells us like what will be the final money supply that is found in the economy children. Okay, now finally children there will be one more answer that will be teaching you, but I just don't want to confuse you. Okay, limited things that we are studying children, but hope so that you are keeping a track of what we have completed and some important answers। जैसे कि अभी जो मैंने आपको आंसर पढ़ा है कौन सा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। और नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन चिल्ड्रन, दैट विल बी अनदर इंपॉर्टेंट आंसर दैट वी हैव। जनरली एग्जामिनर्स को एक हैबिट होता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये दो आंसर्स उसमें से आएंगे। ठीक है, सो आने वाले लेक्चर में अपना 13th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा चिल्ड्रन, फिर हम लोग डिमांड फॉर मनी की तरफ स्विच करेंगे फिर, राइट। So that's all for today. Thank you very much. See you in the next lecture with the winding up of chapter number 13. Bye everyone. Take care.